Assalamu alaikum. Here is an experiment of the estimation of chloride ions, and the chloride ions are estimated or determined by the method of the which is called as a Mohr method, and it detects the result of the presence of chloride ion in the water. In here is an word argentometric method. So what is the argentometric method? Argentometric method is actually deduct from the name of the silver nitrate, as the titrant is present in the pipette is silver nitrate, so the IUPAC name of the silver nitrate is argenton, and this method is therefore called the argentometric method, and it was produced or developed by the Carl Mohr in 1856. It is an oldest titration method but still in use. Mohr method of the estimation of chloride by the titration with the silver nitrate. So with the help of the silver nitrate, the estimation of chloride can be helpful. So here is a diagram of a conical flask. Upper the burette is hanging in the stand, and the silver nitrate is in and the burette, and we titrated the silver nitrate in the presence of the chromate as an indicator. So the principle of this practical is the here that the chloride ion is determined by the titration of water. जो chloride ion है उसको हम कैसे determine कर सकते हैं? वाटर सैंपल की टाइट्रेशन करके विद द सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट की कंडीशन क्या होगी कि हम इसके अंदर इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे पोटाशियम करोमेट, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड होगी जो लेस यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द सिल्वर क्रोमेट. जो सिल्वर जो है वो रिएक्ट करता है क्लोराइड आइंस के साथ. जो सिल्वर है वो जब रिएक्ट करेगा क्लोराइड आइंस के साथ तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और सिल्वर क्लोराइड के बनने से हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स आएंगे उनका कलर होगा वाइट. ऑन दी अदर हैंड जो क्लोराइड आइंस हैं वो तो कंज्यूम हो जाएंगे, तो जो सिल्वर आइन है वो जब क्रोमेट आइंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्रोमेट जो है वो देंगे, सिल्वर क्रोमेट देंगे, और उसका जो कलर होगा वो होगा रेड कलर. So I hope you can understand, you understood the principle. So let's start the practical, and the apparatus is here which we have to use. First of all is the burette and stand for hanging the burette, and we have two pipettes. We have to use two pipettes. One is of the 10 ml and the other is of 20 ml. And we have the volumetric flask of the 100 ml and conical flask of the 250 ml. On the other hand, we have the measuring cylinders of two measurements, 10 or 100 ml. The chemical which we used in the practical is a silver nitrate solution and potassium chromate, which is act as used as an indicator solution. As I explained in the principle about the silver and the reaction of the silver and chlorine, so here is the reaction in of your screen. Silver and chlorine react with each other to form the silver chloride, and is of the color of white precipitates. And in second step, the silver and the chromate ion react with each other to form the red precipitate silver chromate ions. Next, the procedure begins. First of all, we have to filter the seawater, because of the seawater have the number of sand particle or seaweeds, etc. Therefore, firstly we filter the seawater and then used it. As we start the titration, first of all we titrated the seawater by pipetting the 20 ml of the sample in the 100 volumetric flask, and fill it with the distilled water up to the mark. Next हम pipette के अंदर 10 ml लिक्विड जो है लिक्विड ऑफ द डाइल्यूटेड सी वाटर जो है उसको क्लोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे. अब लिक्विड क्या होता है? मे बी यू हेयर द वर्ड फर्स्ट टाइम, सो आई कैन एक्सप्लेन इट इन द ईजी वर्ड्स. लिक्विड इज द टाइप ऑफ द सोल्यूशन विच वी कैन distribute in the three parts which we use for the analysis in the spectrophotometry and other analysis. So the third step is here is the titration with the 0.1 ml of the silver nitrate solution. Although the silver chloride forms a white precipitates,
So white precipitates and the Coromit indicator initially gives the cloudy solution. जो Coromit indicator है वो हमें कौन से कलर के solutions देता है, cloudy solution देता है और faint lemon yellow कलर के वो होते हैं. टाइट्रेशन 1 का अगर हम टेबल देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज़ की करनी है, सिल्वर नाइट्रेट की. सिल्वर नाइट्रेट की स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 0 होगा और फाइनल वॉल्यूम है 16.4 इन 3 मेजरमेंट्स एंड वॉल्यूम यूज जो है वो भी 16.4 है. NaCl का सोल्यूशन का जो वॉल्यूम हमने लिया है वो 10 है एंड इंडिकेटर यूज इज हेयर कॉल्ड द पोटेशियम क्रोमेट. जब हम नॉर्मेलिटी लेंगे इसकी तो वॉल्यूम जो है NaCl का उसको हम वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट द पॉइंट 00697 नॉर्मेलिटी. क्लोराइड की एस्टिमेशन की बात करते हैं तो क्लोराइड की एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, क्लोराइड कंटेंट उसके अंदर डालते हैं 20 ml ऑफ वाटर सैम्पल और जो वाटर सैम्पल है वो लो कंटेंट ऑफ क्लोराइड के लिए होता है. इसके अंदर हम 5 ml ऑफ NaCl डालते हैं और उसको स्टेट कर देते हैं. स्टेट मतलब स्टेट करने से हम मिक्सिंग का प्रोसेस करते हैं. उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं और एंड देन टेक द सिल्वर नाइट्रेट और उसको पोर इनटू द ब्यूरेट. ब्यूरेट के अंदर डाल देते हैं फनल की मदद से ताकि वो इधर उधर ना गिरे बिकॉज ऑफ थ्रेट एंड द लैब प्रिकॉशंस. और देन हम फ़नल को रिमूव कर देते हैं और ब्यूरेट ब्यूरेट से हम फ़नल को ऊपर से रिमूव कर देते हैं. देन यू हैव टू पोर द 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर. इंडिकेटर को हम फ्लास्क के अंदर डालेंगे. जैसे ही हम इंडिकेटर को फ्लास्क के अंदर डालेंगे तो हम टाइट्रेशन जो है वो होने लग जाएगी. टाइट्रेशन होने का मतलब है कि हमें फ़ाइनल कलर हमारा मिल जाएगा. फ़ाइनल कलर की हमने बात की थी तो वो हमें रेड ब्राउन कलर मिलेगा. रिएक्शन आपके सामने जो है इसके अंदर वो क्या है कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट हमारे पास आ जाता है. एंड सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम क्रोमेट आयन जब रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्रोमेट आयन्स मिलते हैं हमें. टाइट्रेशन 2 के अंदर अगर हम देखें टेबल में तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम इधर भी 0 है सिल्वर नाइट्रेट का और और सिल्वर नाइट्रेट का जो फाइनल वॉल्यूम है वो 10 है और जो वॉल्यूम हमने यूज़ किया है इज़ ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वाटर सैम्पल का जो वॉल्यूम है वो भी 10 है. जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 216.1386 ppm आ जाएगा. राउंड ऑफ में हमारे पास 216.14 ppm कंसिड्रेशन आएगी. और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो हमारे पास जब टाइट्रेशन करेंगे तो जब हमें लास्ट पे अपीयर हो जाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि क्रोमेट आयन जो है उसकी एस्टिमेशन या उसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं या उसके हम ऐसे कह सकते हैं जो क्रिस्टल्स हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, वो हमें इस तरह इंडिकेशन हम करते हैं. अब इस टाइट्रेशन को हम 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे. जैसे हम इसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट मतलब एक्यूरेट रीडिंग हम डिडक्ट कर सकते हैं इससे. So this is for you the estimation of the chloride ion. Thank you so much.